بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تارا ہے۔ میں اسلام آباد میں فیصل مسجد کے قریب بنی رہائشی کالونی میں رہتی تھی۔ اس کالونی میں 2 کمروں کا ایک گھر میرے ابو نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ میرے ابو فیصل مسجد کی سیکیورٹی اہلکار میں شامل تھے۔ میرا سارا بچپن اس مسجد کے صحن، دالانوں اور راہداریوں میں گھومتے گزرا۔ یہاں کام کرنے والا ہر عملہ مجھے بہت اچھے سے جانتا تھا، کیونکہ میں یہاں ہر دوسرے تیسرے روز آ جاتی تھی۔ مجھے یہاں آنے پر کبھی ابو نے نہیں روکا، البتہ امی کبھی کبھی ٹوک دیا کرتی تھی، لیکن میں کب سننے والی تھی۔ میں جب اسکول سے واپس آتی تو جلدی جلدی کھانا ختم کرتی اور پھر بھاگتے ہوئے فیصل مسجد آ جاتی۔ یہاں آنے سے پہلے اپنے محلے کی دکان سے چپس اور سلانٹی کے پیکٹ خریدتی، جس کے لیے پیسے میں ابو سے صبح ہی اسکول جانے سے پہلے لے لیا کرتی تھی۔ پھر جب میں فیصل مسجد میں داخل ہوتی تو سیڑھیوں کے پاس ایک کونے میں بیٹھ جاتی، جہاں سے فیصل مسجد کا سارا ویو نظر آتا، اور یہاں آنے والے سیاحوں کا جائزہ لیتے ہوئے میں اپنے ساتھ لائے چپس اور سلانٹیاں بھی کھاتی جاتی۔ اس مسجد کو دیکھنے کے لیے زیادہ تر غیر ملکی سیاح آتے تھے، اپنی فیملیز کے ساتھ گھومتے پھرتے اور فوٹو کھنچواتے۔ ان کے مسکراتے چہرے دیکھنا میرا پسندیدہ مشغلہ ہوتا تھا۔ خاص کر چائنیز کی ایک بڑی تعداد یہاں وزٹ کے لیے ضرور آتی تھی، لیکن ایک بات جو میں نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ یہاں آنے والے غیر ملکی وزٹرز کی بیویاں اپنے مکمل حجاب لے کر مسجد کے احاطے میں داخل ہوتی اور پردے اور مکمل لباس کا خاص خیال رکھتی تھی۔ یہ دیکھ کر میں ایک انجانی سی خوشی محسوس کرتی۔ ان کے لباس کھلے اور بہترین ہوتے، جو مکمل پردے کے مفہوم پر پورا اترتے، لیکن مقامی لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کر مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا۔ انہیں ایک اسلامی ملک اور مسلم ہونے کے ناطے تو پتہ ہونا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور پردے کا خیال کیسے رکھنا چاہیے، لیکن افسوس کہ اکثر اس بات کا خیال بہت کم رکھا جاتا تھا۔ لیکن خیر، میں اس خاموش مشاہدے میں چپکے سے لائی ہوئی چیزیں کھاتی جاتی اور ان کے ریپرز ڈسٹ بن میں ڈال دیتی، کیونکہ ابو نے مجھے یہاں گند پھیلانے سے سختی سے منع کر رکھا تھا، اور جب ابو کو چھٹی ہوتی تو میں واپسی میں ان کے ساتھ ہی گھر چلی جاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے خوشی اور اطمینان ابو کے چہرے پر اچھا لگتا تھا۔ وہ گھر جانے سے پہلے منگل بازار سے فروٹ اور سبزی پورے ہفتے کی خرید لیا کرتے تھے۔ میں نے ہمیشہ ابو کے ہاتھ میں سودا سلف کے شاپر دیکھے تھے۔ وہ جب بھی گھر آتے تو ان کے ہاتھ کبھی خالی نہ ہوتے تھے۔ مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا کہ امی نے انہیں کہا ہو کہ آج گھی ختم ہو گیا ہے یا نمک مرچ نہیں ہے۔ میرے ابو اتنے ذمہ دار انسان تھے کہ وہ امی کے کہنے سے پہلے بہت سی چیزیں لے آتے۔ انہیں سب پتا ہوتا کہ گھر میں کون سا راشن کب ختم ہونے والا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں کبھی بھی افراتفری نہیں بنی۔ میں اور امی یہاں آنے سے پہلے گاؤں میں رہتے تھے۔ دادا دادی کا گھر کا ماحول انتہائی روایتی تھا۔ امی گھر کا سارا کام بھی کرتی اور اوپر سے دادی کی سخت طبیعت کو بھی جھیلتی۔ پتہ نہیں کیوں دادی ان کے کسی کام سے مطمئن نہ رہتی۔ دن کو کھانا کھانے کے بعد امی تھوڑی دیر کے لیے اگر لیٹ جاتی تو دادی بڑبڑاتی ہی رہتی کہ میڈم ہر وقت آرام ہی کرتی رہتی ہے، حالانکہ دن کو کوئی خاص کام نہیں ہوتا تھا۔ لیکن دادی کی وجہ سے امی دن کو نہ سو پاتی اور خواہ مخواہ ہی اٹھ کر بیٹھی رہتی اور آنکھوں میں آئی نیند کو بھگاتی رہتی۔ گرمیوں کے لمبے لمبے دن اور اوپر سے بے آرامی میں امی کی صحت پر بہت برا اثر ڈالنا شروع ہو گیا۔ پھر دادی نے گھر میں گائے بھی رکھ لی اور اس کی ذمہ داری بھی امی کے سر پر ڈال دی۔ امی گھر کا کام ختم کرتی تو مویشیوں کے باڑے میں چلی جاتی اور 3-4 گھنٹے لگا کر باڑا صاف کرتی، جانور باہر کھلی جگہ پر باندھتی، ان کا دودھ دھوتی، پھر گوبر اکٹھا کرتی، اوپلے تھاپتی۔ تپتی دوپہریں امی کے سر پر گزرتی۔ وہ تھکی ہاری گھر پر آتی تو دادی کو چائے یاد آ جاتی۔ دن کے 4 بجے گھر میں چائے بنتی اور دن کے کھانے کے برتن اور چائے کے برتن امی کھورے پر رکھ کر دھوتی۔ پھر شام کے لیے تنور جلاتی اور ساتھ ساتھ مٹی کے چولہے پر سوکھی لکڑیاں چھوٹی چھوٹی کاٹ کر ترتیب سے رکھتی جاتی، اور جب سبزی کے تڑکے کے لیے لہسن ٹماٹر کاٹ لیتی تو لکڑیاں جلاتی، جنہیں نہ جانے کتنی بھوکوں کے بعد آگ لگتی، اور پھر امی اس پر دیگچا رکھتی اور لہسن کا تڑکا لگاتی، جس کی خوشبو پورے صحن میں پھیل جاتی۔ ان دنوں میں نے نیا نیا اسکول جانا شروع کیا تھا، لہٰذا صحن میں بیٹھ کر اسکول کے کام کرتے کرتے میں امی کی ساری سرگرمیاں بھی دیکھتی جاتی۔ امی بغیر رکے، بغیر دم لیے اپنا کام کرتی جاتی،
لیکن خدا جانے دادی ان کے کسی کام سے خوش کیوں نہ رہتی اور بلا وجہ انہیں ڈانٹتی بھی جاتی۔ کبھی کہتی چائے میں چینی زیادہ ہے، کبھی کہتی یہ چینی تیرے بابا کے گھر سے آئی ہے جو کم ڈالتی ہے، کبھی کہتی چائے گرم کر کے دو، کبھی کہتی یہ چائے زیادہ گرم کیوں کر ڈالی۔ تنور میں لکڑیاں ڈال کر جب امی جلاتی تو دادی کی نظر ماچس پر بھی ہوتی۔ وہ اکثر امی کو کہتی کہ تم ماچس کی تیلیاں بہت زیادہ ضائع کرتی ہو، اپنے ہاتھوں میں دم ڈالا کرو اور ایک تیلی سے لکڑیاں جلانا سیکھو، آخر تمہیں یہ کام کب آئیں گے۔ سالن بنانے لگتی تو کہتی گھی بہت زیادہ ڈال دیا ہے، اور پھر اس بات پر ان کی کمنٹری شروع ہو جاتی۔ گھی کے ساتھ ساتھ انہیں کبھی مرچ تیز لگتی تو کبھی نمک کم۔ وہ امی کو ستاتے ہوئے کہتی کہ اتنا شاہی کھانا چلاتی ہے کہ راشن 2 دن میں ختم ہو جاتا ہے، کون پوری ڈالے گا ایسی پھوہڑ عورت کے آگے۔ وہ میرے پاس ہی دوسری چارپائی پر ہاتھ والا پنکھا جھلاتے ہوئے امی کو بس باتیں سناتی ہی چلی جاتی، اور امی چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہتی، لیکن کبھی پلٹ کر انہوں نے دادی کو جواب نہیں دیا۔ امی اکلوتی تھیں، والدین فوت ہو چکے تھے، وہ جاتی بھی کہاں اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ بس ایک چپ انہوں نے اپنے ہونٹوں پر لگا رکھی تھی، اور اس چپ نے ان کے خوبصورت رنگ کو جلا کر رکھ کر دیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیا کہ انہیں دادی کی باتیں بری لگ رہی ہیں۔ ویسے بھی وہ بہت کم گو تھیں، ہر وقت سنجیدگی اوڑھے سر جھکائے کام میں مصروف رہتی۔ پہاڑ کے تانے دیتے دیتے دادی اب انہیں کوک جلی کے تانے بھی دینے لگی تھی، کیونکہ میرے بعد ان کے کئی حمل ضائع ہو گئے۔ حمل ضائع ہونے کے بعد وہ 2 دن سے زیادہ اس حالت میں بھی چارپائی پر نہ لیٹ سکی، بلکہ دادی کے تانوں نے انہیں آرام کرنے ہی نہ دیا۔ وہ تیسرے دن ہی زبان پر کوئی گلا شکوہ لائے بغیر ہی اٹھ کر کام کاج کرنا شروع کر دیتی۔ میں اکثر دادی کا شور شرابہ سنتی رہتی تھی اور پہلو پر پہلو بدلتی رہتی۔ میں بہت چھوٹی تھی، کچھ باتیں میری سمجھ میں آتی اور کچھ نہ آتی، لیکن مجھے اب یہ باتیں بہت بری لگنے لگ گئی تھیں کہ وہ ہر وقت میری ماں کو تانے دینے کے ساتھ ساتھ اب گالیاں بھی دینے لگی تھیں۔ وہ آنے جانے والوں کے سامنے امی کو بنجر زمین بھی کہہ جاتی۔ ایسے میں نے انہیں واضح طور پر امی کے ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھا۔ جانے کیوں مجھے دادی کی یہ باتیں اتنی بری لگتی کہ اب میں نے ان کے سامنے بولنا شروع کر دیا تو وہ مجھے آگے سے بہت بری طرح سے ڈانٹ دیتی اور امی سے کہتی کہ تم اسے پٹیاں پڑھا رہی ہو، اب یہ کل کی بچی میرے آگے بولے گی۔ ہاں بھائی، جیسی ماں ویسی بیٹی، ظاہر ہے تربیت بولتی ہے، جیسی تربیت تم اس کی کر رہی ہو ویسی ہی یہ بن رہی ہے۔ تو امی مجھے اکثر ڈانٹ کر چپ کرا دیتی، لیکن جب دادی نے ابو کی دوسری شادی کے حوالے سے گھر میں آہستہ آہستہ بات کرنی شروع کی تو اس وقت امی کو دیکھ کر ایسا لگا کہ جیسے ان کے ہونٹوں پر لگا صبر کا قفل ٹوٹ گیا ہو اور ان کی بنیادیں تک ہل گئی ہوں، اور وہ مجھے برسوں کی بیمار نظر آنے لگی۔ صبر کی اس مورتی پر مجھے ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اپنی ماں کے غم کو کیسے کم کروں۔ جب رات کو امی کو بے آواز روتے ہوئے دیکھتی تو میرا دل جیسے مٹھی میں جکڑ جاتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں ایسا کیا بولوں کہ امی کا دکھ ختم ہو جائے۔ جب بہت سوچنے کے بعد بھی مجھے کچھ سمجھ نہ آتی تو ایسے میں اٹھ کر امی کی چارپائی پر چلی جاتی اور ان کے سینے کے ساتھ لگ جاتی۔ وہ اپنے پاس پا کر ایک دم سے اپنا رونا بھول جاتی۔ کبھی کبھی میں اپنے ننھے ہاتھوں سے امی کے آنسوؤں کو صاف کرتی جنہیں وہ مجھ سے چھپانے کی بہت کوشش کرتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اپنا غم کیوں آخر کسی کو نہیں بتاتی۔ ابو ان دنوں مہینوں کے بعد ہی چھٹی لے کر 2 دن کے لیے آتے اور اتوار کی شام کو ہی اسلام آباد واپس اپنی ڈیوٹی پر چلے جاتے۔ ان 2 دنوں میں انہیں گھر کے حالات کے بارے میں زیادہ جانکاری نہ ہو پاتی۔ رات کو وہ دونوں جب آپس میں آہستہ آواز میں باتیں کرتے تو میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ امی نے کبھی بھی گھر کے معاملات اور دادی کے تانوں کا ذکر ابو سے نہیں کیا۔ میں ان کے قریب ہی چارپائی پر سونے کا ناٹک کرتی تھی، لیکن دراصل میں جاگ ہی رہی ہوتی تھی اور پھر میں جلد ہی سو جاتی، کیونکہ ان کی خسر پھسر تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ لیکن ان 2 دنوں میں دادی ابو کے کان بھرتی رہتی، اور اب تو وہ ابو کو دوسری شادی کا بھی کہنے لگ گئی تھی، جسے ابو ایک کان سے سنتے دوسرے کان سے نکال دیتے۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے تھوڑا بہت گھر کا کام کیا اور پھر لیٹ گئیں۔ جب دادی نے ان کو لیٹا ہوا دیکھا تو امی کو بہت گالیاں دی اور انہیں گھر سے باہر نکال دیا۔ امی دروازے پر بیٹھ کر کافی دیر تک روتی رہیں۔ مجھ سے امی کی یہ حالت دیکھی نہ گئی اور میں نے ایک چھوٹا سا خط ابو کے نام لکھا اور اس میں ساری تفصیل
उन्हें कच्ची पक्की राइटिंग में लिखकर भेज दी। खत का एड्रेस मुझे दादा की डायरी से मिल गया था, क्योंकि दादा अब्बू अक्सर खत लिखा करते थे और अब्बू का भी इस्लामाबाद से खत दादा के नाम ही आता था, इसलिए मुझे एड्रेस ढूंढने में दिक्कत ना हुई। मेरा खत जो ही अब्बू को मिला तो अब्बू बहुत परेशान हुए। वो मेरा खत मिलते ही फौरन गांव आए। घर में तनाव की कैफियत अब्बू ने खुद महसूस की, और इस बार उन्होंने अम्मी को भी गौर से देखा, जो बेहद कमज़ोर हो गई थी। हस्बे आदत अम्मी से अब्बू ने जब पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब दादी से उन्होंने पूछा तो दादी ने अम्मी को बहुत सख्त सुस्त कहा। अम्मी बहुत बीमार थीं। अब्बू ने जब उनकी हालत देखी तो उन्हें दादी पर बहुत गुस्सा आया कि इस हालत में भी उन्हें घर के काम की पड़ी हुई है और उन्हें अपनी बहू की तबीयत खराब होने की भी परवाह नहीं। उन्होंने जब दादी से पूछा, क्या आपने इसे कोई दवाई वगैरह दिलवाई है? इसे इतना बुखार है और सीने में मुस्तकिल दर्द की शिकायत भी ये कर रही है। तो दादी ने इंतहाई लापरवाही से कहा कि ये नाटक कर रही है, भली चंगी है। बस जब खामिंद के घर आने का टाइम होता है तो ऐसी औरतें सर पर दुपट्टा कस के बांध लेती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि वो बहुत ही बीमार है। ये तो सदा की बड़ी ड्रामेबाज है। तुम इसकी बातों में कहाँ आ रहे हो? अब्बू के लिए दादी की ये बातें बड़ी हैरानकुन थी। वो अम्मी की शिकायतें तो उनके मुंह से हमेशा सुनते ही रहते थे, लेकिन उन्हें ये इल्म न था कि उनकी माँ इतनी संग दिल है कि बीमारी की हालत में भी बहू को बख्शने को तैयार नहीं। अब्बू फौरन ही अम्मी को गांव के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले गए। जब उनके तमाम टेस्ट हुए तो पता चला कि उन्हें टाइफाइड है और डिप्रेशन में रहने की वजह से उन्हें दिल की तकलीफ भी लाहक हो गई है। अब्बू के सर पर तो जैसे इस खबर से कयामत टूट गई, क्योंकि अब्बू अम्मी को बहुत चाहते थे और जो घर के हालात उन्हें नजर आ रहे थे उसमें वो अम्मी को अकेले छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे, क्योंकि दादी किसी किस्म की भी सपोर्ट अम्मी को देने को तैयार न थी और अब्बू का दिल इस हाल में अम्मी को छोड़कर वापस इस्लामाबाद जाने के लिए तैयार न था। हॉस्पिटल ले जाते वक्त भी दादी खूब शोर मचा रही थी और जब वो हॉस्पिटल से उन्हें लेकर आए और आराम करने के लिए उन्हें कमरे में जाने के लिए कहा तो दादी ने पूरा घर सर पर उठा लिया। उन्होंने अम्मी को बहुत बुरी बुरी गालियां दी और कहा कि ये जादूगरनी है, मेरे बेटे को इसने ना जाने क्या खिला दिया है कि वो लट्टू की तरह इसके गिर्द घूम रहा है और जैसा ये कह रही है इसको सच तस्लीम कर रहा है। अब्बू बड़े हैरान हुए कि दादी क्यों बिला वजह शोर किए जा रही हैं। उन्होंने अम्मी से पूछा कि आखिर उन्हें किस बात का गुस्सा है, तो दादी कहने लगी, सारे घर का काम पड़ा हुआ है, इसको कौन करेगा? तो अब्बू बड़े हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि ये घर का काम तो होता ही रहता है, लेकिन जब एक इंसान बीमार हो तो आप मुझे बताएं कि वो घर का काम कैसे करे। क्या ये आपको इंसान नहीं लगती, या जो बाड़े में आपने जानवर बांधे हुए हैं क्या ये उससे भी बदतर है? वो भी जब बीमार होते हैं तो क्या आप उन्हें डॉक्टर के पास दवाई लाकर नहीं देती, उनके आराम का ख्याल नहीं रखती? तो बहू भी तो इंसान है, कम से कम इसका इतना ख्याल तो करें कि वो ठीक हो जाए। वो ठीक होगी तो घर का काम भी होगा, वो बीमार रहेगी तो आप मुझे बताएं कि वो इस घर के काम को कैसे करेगी। दादी पहली बार अपने बेटे की बातें सुनती रहीं। उन्हें अपनी बहू की तरफदारी किसी तौर पर अच्छी नहीं लग रही थी। अब्बू को शदीद गुस्से में देखकर दादी उस वक्त तो चुप हो गई, तो अब्बू ने अपनी छुट्टियां और बढ़ा ली। उन्होंने उन दिनों अम्मी को बिल्कुल भी कामकाज करने न दिया। दवाई दारू की अच्छी तरह खुराक देने पर अम्मी बहुत जल्द अपने पैरों पर दोबारा खड़ी हो गई। उन्हीं दिनों अब्बू ने एक और काम भी किया कि उन्होंने छोटे चचा का निकाह करवा दिया और सादगी से रुखसती करवा कर चची को घर ले आए। जिस दिन चची की बारात हमारे घर आई उसी दिन अब्बू ने अम्मी को तैयार किया और उन्हें लेकर वो इस्लामाबाद आ गए। दादी ने जब एतराज किया कि तुम इसे लेकर जा रहे हो तो घर का काम कौन करेगा, अब्बू ने उन्हें तुरंत जवाब दिया कि घर का काम आपकी ये बहू जो आप ब्याह कर आज लाई हैं ये करेगी, क्योंकि हमारी शादी होते ही मेरी बीवी ने भी दूसरे दिन ही घर को संभाल लिया था, तो ये भी संभालेगी। दादी को तो जैसे चुप ही लग गई हो। अब्बू ने कहा कि पहले मैं अपनी बीवी को इसलिए नहीं लेकर गया कि आप अकेली थी, अब आपकी बहू आ गई है, लिहाजा मैं अपनी बीवी को अपने साथ ही रखूंगा। मुझे वैसे भी क्वार्टर मिल गया है और इसकी तबीयत भी कुछ इतनी अच्छी नहीं है। मैं इसे वहाँ के बड़े अस्पताल पिम्स में चेक करवाऊंगा, क्योंकि इसे दिल की तकलीफ भी है, लिहाजा बड़े अस्पताल में ही इसका इलाज मुआवजा हो तो बेहतर है। फिर उन्होंने अम्मी को तैयार किया और उन्हें ताकीद की कि बस वो कपड़े लेकर जाएंगी और कोई सामान मत लेकर जाएं, क्योंकि ज़रूरत का सामान घर में पहले ही खरीद कर रख लिया गया है। फिर अब्बू हमें लेकर इस्लामाबाद के उस क्वार्टर में आ गए और अम्मी की ज़िंदगी में जो भूचाल सुबह से शाम आया रहता था वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अब्बू बहुत ही हंसमुख तबीयत के मालिक थे
उन्होंने अम्मी को यहाँ लाकर बहुत ही सुख दिया। बेहतरीन हॉस्पिटल से चेकअप करवाया, वक्त पर दवाइयाँ अपने हाथ से दी और अम्मी की खुराक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, तो अम्मी चंद दिनों में ही भली चंगी हो गई। उनका वो जला जला सा रंग अब कहीं देखने से भी नजर ना आता। मेरी माँ एक बहुत ही खूबसूरत औरत के रूप में ढलती जा रही थी। ये सच है कि खाविंद अच्छा हो, प्यार करने वाला हो और सबसे बढ़कर समझने वाला हो तो औरत बहुत जल्द निखर जाती है। अब्बू घर आने के बाद भी अम्मी के साथ हाथ बटाते थे, उनके आराम का पूरा पूरा ख्याल रखते। इतवार को अब्बू को छुट्टी होती थी तो वो मुझे और अम्मी को घुमाने के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ खूबसूरत मुकामात पर सैर व तफरी के लिए भी ले जाने लगे। ऐसे में वो अम्मी से स्पेशल फरमाइश करते थे कि पिकनिक पर जाने के लिए घर से ही कुछ ना कुछ पका कर ले जाओ, क्योंकि वो बाहर के खाने खा खा कर बहुत तंग आ गए थे और उन्होंने शुक्र किया था कि उन्हें घर का साफ सुथरा खाना पका हुआ मिलने लगा है। और वो कई बार अम्मी से इस बात की शुक्रगुजारी करते थे कि उन्हें अब घर का खाना मिलता है, वरना पहले उन्हें बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बाजार के होटल का खाना खा खा कर उनके पेट अक्सर खराब रहता, तो उन्होंने खुद ही खाना बनाने की भी कोशिश की, लेकिन ड्यूटी के औकात इतने सख्त होते थे कि उन्हें कभी कभी खाना बनाने का भी टाइम मुयस्सर ना आता, तो ऐसे में मजबूरन बाहर का खाना खाना ही पड़ता था। वो अम्मी के पकाए हुए खानों की बड़ी कदर करते और बहुत तारीफ करते, तो अम्मी मुस्कुराकर शर्मा जाती। घर के इस खूबसूरत और पुरसुकून माहौल में मेरी सोचों पर भी बहुत गहरा असर डाला। मैं अब जमकर पढ़ाई करती और पढ़ते पढ़ते घर की पुरसुकून फिजा में मुझे सबक भी बहुत अच्छा सा याद हो जाता और मैं क्लास में अब अव्वल आने लगी थी। ये सच है कि घर में अगर टेंशन चल रही हो, हर वक्त तनाव की कैफियत हो, लड़ाई झगड़ा हो, तो उसका सबसे बुरा असर बच्चों के जहनों पर पड़ता है। वो ना ढंग से खा पी सकते हैं और ना ही ढंग से पढ़ाई कर सकते हैं। मैं जब गांव में थी तो अपना कभी भी स्कूल का काम सुकून से न लिख पाती थी, तो दादी अक्सर मुझे कहती थी कि जैसी माँ नालायक वैसी ही ये बेटी नालायक है, जब देखो उस्तानियाँ इसकी शिकायत करती रहती हैं। लेकिन जब मैं इस्लामाबाद आकर स्कूल में दाखिल हुई तो यहाँ किसी भी टीचर ने मेरी कोई शिकायत घर ना भेजी, बल्कि मेरी हर वक्त तारीफ ही अम्मी से करती। जब भी वो पेरेंट टीचर मीटिंग पर जाती, जिस पर मेरे अम्मी अब्बू दोनों बहुत खुश होते। अब्बू मेरी तारीफ के साथ साथ अम्मी की मेहनत की भी तारीफ करते, जिसकी वजह से अम्मी के चेहरे पर झलकती मुस्कुराहट मुझे मबहूत कर देती। औरत की जिंदगी का ये पहलू किस कदर हसास है कि वो जिसे चाहती है उसके मुंह से तारीफ भी सुनना चाहती है, और जरा सी कदर, जरा सी तारीफ उसकी जिंदगी का ज़्यादा राह होती है, जिसके सहारे वो अपनी जिंदगी की तमाम तर तलखियों को हंस कर पी जाती है। दिन ब दिन अम्मी की सेहत अब बेहतर हो रही थी, जिसे देखकर अब्बू अब मुतमईन थे। उन्हें लगता था जैसे उन्होंने अपनी तमाम तर गलतियों का अजाला कर डाला हो। अम्मी की निस्बत मेरा और अब्बू का ज्यादातर वक्त घर से बाहर गुजरता। मैं स्कूल जाती और अब्बू ड्यूटी पर, लेकिन जब हम घर वापस आते तो हमारा घर एक खूबसूरत जन्नत की तरह महसूस होता। घर का कोना कोना साफ सुथरा होता। अम्मी घर की सफाई सुथराई दिलो जान से करती कि पूरा घर जगमगाता रहता। वो बहुत सलीकामंद थी। बिस्तर की चादरें और तकिए उन्होंने अपने हाथ से कढ़ाई किए थे। कॉलोनी की जो औरतें देखती दंग रह जाती। इस क्वार्टर का सहन बहुत खुला था, जिसमें अखरोट के दरख्त लगे हुए थे, जिस पर अंगूर की बेल के साए तले अम्मी ने चारपाई डाली होती थी। पास एक घड़े पर मिट्टी का प्याला रखा हुआ था और उस घड़े के मुंह पर मोतिया के फूलों का हार बनाकर अम्मी डाल देती। दरख्त तले साया, घड़े का ठंडा मीठा पानी और मोती की खुशबू यहाँ बैठने वालों की सारी थकन उतार देती। हमें एक साथ आता देखकर अम्मी के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आ जाती और उस मुस्कुराहट पर अब्बू फिदा थे। अब्बू दूसरी चारपाई पर बैठकर अम्मी से हल्की सरगोशी में बातें करते। ऐसे में अम्मी की कलाइयों में पहनी कांच की चूड़ियां जब खनकती तो लगता सहन में हल्का हल्का किसी ने सांस छेड़ दिया हो। मैं अपना स्कूल का काम लेकर बैठ जाती और अब्बू अम्मी के साथ किचन में जाकर उनकी मदद करवाते। अब्बू की मीठी मीठी बातों पर अम्मी के गालों पर हया की सुर्खी फैल सी जाती और वो शर्मा कर सर झुकाकर दांतों तले अपने गुलाबी होंठों का कोना दबा लेती। ऐसे में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती थी। इन्हीं मोहब्बतों को देखते देखते वक्त कितनी तेजी से गुजरा पता ही ना चला। मैं मैट्रिक कर चुकी थी और अब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं अब फैसल मस्जिद तो रोजाना ना जाती थी, लेकिन जुमा वाले दिन वहां नमाज पढ़ने जरूर जाती, तो अम्मी भी मेरे साथ चल पड़ती। वो भी जुमा का ही एक दिन था। मैं हमेशा जुमा वाले दिन मखसूस लिबास, सफेद कुर्ता पजामा जेब तन करती थी और इत्र की खुशबू लगाती और अपनी सफेद क्रिस्टल के दानों वाली तस्बीह लेकर बड़ा सा दुपट्टा ओढ़कर अम्मी के साथ चल पड़ती।
जुमा वाले दिन मेरा और अम्मी का फैसल मस्जिद आने का मामूल बन गया था। अम्मी नमाज के बाद नवाफिल पढ़ने लग जाती तो मैं नमाज ख़त्म करने के बाद सीढ़ियों के पास अपनी मखसूस जगह पर जाकर बैठ जाती। जुमा वाले दिन यहाँ पर रश मामूल से ज़्यादा ही होता था। मैं पानी पीने के लिए करीब ही वाटर कूलर के पास गई और सीढ़ियाँ उतरते हुए अचानक मेरी नज़र एक मर्द पर पड़ी जिसने सफ़ेद रंग का अबाया पहना हुआ था, जैसे अरबी शख्स पहनते हैं। उसने अपना मोबाइल पकड़ा हुआ था और उसका रुख मेरी तरफ था। जाने क्यों उसे देखकर मुझे गुस्सा आया कि ये कौन सा तरीका है वीडियो बनाने का। मैंने जल्दी जल्दी अपने चेहरे पर दुपट्टा फैलाया और सीढ़ियाँ उतरते हुए इंतहाई गुस्सीली नज़रों से मैंने उसे घूर कर देखा तो उसने अपना मोबाइल नीचे कर लिया। मोबाइल उसके चेहरे से जूं ही हटा तो मैं ठटक सी गई, क्योंकि मेरे सामने खड़ा ये मर्द इंतहाई खूबसूरत था। सुर्ख सफ़ेद रंगत पर उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी बहुत ही भली लग रही थी। बड़ी बड़ी सब्ज रंग की आंखें मुझ पर जमी थी और उसके सुर्ख होंठों पर निहायत ही दिल आवेज मुस्कुराहट देखकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन आदमी कभी नहीं देखा था। मैं जैसे उसकी खूबसूरती के सहर में डूबती चली गई और पलकें झपकाना तक भूल चुकी थी। वो शायद अपनी खूबसूरती की तस्खीर से बहुत अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए मेरा यूं बर्फ की तरह जम जाना उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। अस्तगफिरुल्लाह। अचानक मैंने अपने दिल में सोचा कि ये मैं क्या कर रही हूँ। यूं किसी गैर महरम मर्द को टिकटिकी बांध कर देखना कितने गुनाह की बात है। इस ख्याल के आते ही मैं अल्लाह से ताइब होने लगी और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर वापस अपनी जगह आ गई। लेकिन मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सी बेचैनी सी फैल गई। मैं शर्म से अब अपना सर उठाकर ऊपर नहीं देखना चाहती थी, लेकिन बगैर देखे भी मेरा अब गुजारा होना मुहाल था। लिहाजा मैंने बड़ी हिम्मत करके जब ऊपर देखा तो अब वो सामने नहीं था। मेरी नज़रों की बेकरारी मेरे दिल से छुपी हुई न थी और मैं उसे इधर उधर देखने लगी तो वो मुझे कहीं पर भी नजर ना आया। तो ना जाने क्यों मेरा दिल परेशान सा हो गया। शायद ये उम्र ही ऐसी होती है कि जिसमें अब दूसरों की तरफ ना चाहते हुए भी मतवज्जे हो जाते हैं। मैं दोबारा से अपनी तस्बीह पढ़ने लगी और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी। असर की अजान हो चुकी थी, लिहाजा मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए जब खातीन वाली साइड जाने लगी तो अचानक मुझे फिर वो दिखाई दिया। वो मुझे कनखियों से देख रहा था और फिर देखते देखते वो मेरे करीब आने लगा। मेरा पूरा जिस्म जैसे मुंजमिद हो गया था, लेकिन फिर मुझे अचानक एहसास हुआ कि जैसे वो किसी हवा के बगोले की तरह मेरे बदन से गुजर गया हो। उसके गुजरने का बाकायदा मुझे एहसास भी हुआ। मैंने दाएं बाएं मुड़कर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आया। कहीं ये मेरी नज़र का धोखा तो नहीं हो रहा। मैंने फिर अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा। ये शख्स तो मेरे आसाब पर ही तारी हो गया है। अचानक मुझे अपने करीब बहुत ही भीनी भीनी सी खुशबू महसूस होने लगी और ये मोती की खुशबू थी। मोतिये के फूल मेरी कमजोरी थे और मुझे बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने अपने सहन में काफ़ी सारे मोतिये के पौधे लगाए हुए थे। मेरा वुज़ू तो कायम था, लिहाजा मैं जाए नमाज पर खड़ी हो गई, लेकिन मुझे बाकायदा ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है और मेरे बेहद करीब है। मेरे बदन के रोंगटे बार बार खड़े हो रहे थे, जो इस बात का सिग्नल मुझे दे रहे थे कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। बार बार नमाज में मेरा ध्यान भटक रहा था। जो ही मैं नमाज का आखिरी सजदा करके तशहुद पढ़ने लगी तो सजदे वाली जगह पर मुझे मोतिये के काफ़ी सारे फूल नजर आए। मेरी नज़र उन फूलों पर जम सी गई। जैसे तैसे करके नमाज ख़त्म की और दाएं बाएं देखा तो तकरीबन सफ़ों पर खातीन नमाज या तो पढ़ चुकी थी या पढ़ रही थी, लेकिन किसी के सामने मोतिये के फूल नहीं पड़े थे सिवाय मेरे। ये क्या माजरा था, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैंने चुपके से मोतिये के फूल उठाए और अम्मी के इंतज़ार में खड़ी हो गई। जो ही मुझे अम्मी नजर आई तो मैं उनके साथ घर वापस जाने के लिए मस्जिद के अहाते से बाहर निकली, लेकिन जाने क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मोती की खुशबू के अलावा एक भीनी भीनी सी खुशबू मुझे मुसलसल घर तक आते हुए महसूस होती रही। मैंने पलटकर अम्मी से भी एक बार पूछा कि क्या आपको कोई खुशबू महसूस हो रही है, तो उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। घर में दाखिल होते ही अम्मी अखरोट के दरख्त के नीचे पड़ी चारपाई पर आकर बैठ गईं और फिर घड़े से पानी निकाल कर उन्होंने खुद भी पिया और मुझे भी दिया। फिर मुझे कहने लगी कि तारा, आज क्या पकाऊं? कुछ खाने का दिल है तो बता दे। लेकिन मेरा दिल बहुत अजीब हो रहा था, लिहाजा मैंने अम्मी से कहा कि आपका जो दिल करता है पका लें। तो ठीक है, ऐसा करते हैं, दाल चावल बना लेते हैं, साथ में पुदीने की चटनी कर लेंगे। इस वक्त मुझसे भी कुछ नहीं खास बनाने का दिल कर रहा।
तुम दाल उबालने के लिए रख दो, मैं आकर चावलों को तड़का लगा देती हूँ। तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा पकाने को, मैं लेटूंगी जाकर। तो अम्मी ने गौर से मेरी तरफ देखा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी अम्मी की बात को टाला नहीं था, लिहाजा वो चुप हो गई और फिर वो किचन की तरफ चली गई, क्योंकि शाम होने वाली थी और अब्बू आने वाले थे और अम्मी की आदत थी कि वो उनके आने से पहले पहले हांडी तैयार करके रख लेती थी। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी और जो ही दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो ये देखकर मेरे औसान खता हो गए कि वही आदमी जो मैंने फैसल मस्जिद में देखा था अब मेरे बिस्तर पर बैठा हुआ था। उसे देखकर मेरे मुंह से चीख निकली। मेरी चीख की आवाज़ सुनकर अम्मी दौड़ती हुई मेरे कमरे में आई और मुझे अपने दिल के साथ लगाकर पूछा, क्या हुआ? तो मैंने चारपाई की तरफ इशारा किया कि वो यहाँ बैठा हुआ है। तो अम्मी पूछने लगी कि कौन? मैंने जब दोबारा चारपाई की तरफ देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। अम्मी मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देखती और कभी कमरे की तरफ देखती। तारा, क्या बात है बच्चे, तुमने किसको देखा? मैं बौखलाते हुए अम्मी की तरफ देखने लगी। अम्मी, अभी तो यहाँ पर वो आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने फैसल मस्जिद में देखा था। तो अम्मी ने फौरन ही मेरे ऊपर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़कर दम किए। तारा, तुम मेरे साथ किचन में ही आ जाओ, मेरे ख्याल में तुम्हें डर लग रहा है। तो मैंने डरी डरी नज़रों से अपनी चारपाई की तरफ देखा जहाँ पर कुछ भी न था। अम्मी ने मुझे दोबारा पुकारा तो मैंने उनकी तरफ देखा। नहीं अम्मी, मुझे डर नहीं लग रहा, तुम मेरे साथ किचन में आ जाओ। नहीं अम्मी, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा बच्चे, अपना ख्याल रखो, तुम शायद बहुत ज़्यादा थक गई हो, इसलिए आराम करो। अम्मी के जाने के बाद मैं डरते डरते अपनी चारपाई के करीब आई। मुझे तो वहम की बीमारी भी नहीं है, फिर ये बार बार क्या हो रहा है मेरे साथ? अचानक ही मेरी नज़र अपने तकिए के पास मोतिये के फूलों पर पड़ी तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। ये किसने यहाँ रख दिए हैं? मैं खौफ से उन फूलों की तरफ देख रही थी कि अचानक मुझे अपने कमरे में वही भीनी भीनी सी खुशबू महसूस होने लगी और साथ ही एक लतीफ सी हवा मुझे अपने इर्द गिर्द घूमती हुई महसूस हुई। तो मैंने खौफजदा नज़रों से अपने कमरे में घूम घूम कर देखा। मेरे कमरे में ना तो कोई खिड़की थी ना रोशनदान। फिर ये हवा कहाँ से आ रही है? मैंने फौरन आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया और कमरे से बाहर आ गई। कमरे से बाहर आने के बाद भी भीनी सी खुशबू मुझे बाकायदा महसूस हो रही थी। तो मैं डर कर किचन में अम्मी के पास आ गई और उनसे पूछा कि क्या आपने मेरे तकिए के पास मोतिये के फूल रखे थे? तो वो मेरी तरफ गौर से देखने लगी। तुम्हें आज हो क्या गया है तारा? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? कभी तुम्हें खुशबू आती है और कभी तुम्हें आदमी नजर आना शुरू हो जाता है। अम्मी, मैं झूठ नहीं कह रही। अभी जब मैं कमरे में गई थी तो अम्मी ने फौरन मेरी बात काटी। तुम यहीं मेरे पास बैठ जाओ। तो मैं अम्मी के पास ही बैठ गई। अब मैं खुद भी अकेले बाहर नहीं जाना चाह रही थी, ना सहन में ना कमरे में। लिहाजा मैंने चटनी बनाने का सोचा। लाए अम्मी, मैं चटनी बना देती हूँ। नहीं, तुम रहने दो तारा, सब काम कर लूंगी, बस तुम यहाँ आराम से बैठो। मुझे तुम्हारी तबीयत आज कुछ अच्छी नहीं लग रही। वो मेरे लिए बेहद फिक्रमंद हो गई थी। मैंने उनके मना करने के बावजूद चटनी बनानी शुरू कर दी ताकि उनका कुछ काम आसान हो जाए। चटनी बनाते बनाते अचानक मुझे अपने कानों में एक सरगोशी सी महसूस हुई, जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। तारा, तारा। पहले तो मुझे वहम हुआ, लेकिन फिर जब तबातुर के साथ मुझे अपना नाम सुनाई दिया तो मैं डर गई। एकदम मैंने अम्मी की तरफ देखा और उन्हें पुकारा, अम्मी। लेकिन अम्मी मेरी तरफ मतवज्जे ना हुई। तो मैं चुप हो गई, क्योंकि अब अगर मैं कोई बात करती तो वो बेहद परेशान हो जाती और मैं उन्हें किसी भी सूरत परेशान नहीं देख सकती थी। इसलिए मैं खामोश होकर सहमी नज़रों से इधर उधर देखने लगी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दस्तक मुसलसल होने लगी। तो अम्मी मेरी तरफ हैरान नज़रों से देखने लगी कि कहाँ मैं पहली दस्तक पर दरवाज़ा खोलने जाती थी और आज इतनी बार दस्तक हो रही थी और मैं अपनी जगह से हिल ही नहीं रही। तो अम्मी बिलाखिर बोल उठी, तारा, तुम्हें क्या हो गया है? बाहर तुम्हारे अब्बू खड़े हैं, जाओ जाकर उनके लिए दरवाज़ा खोलो। मैं तजब्जुब में खड़ी तो हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर सहन में अकेले जाऊं, क्योंकि बाहर सहन में ठीक ठाक अंधेरा था। अम्मी, मुझे डर लग रहा है। मेरी बात सुनकर अम्मी हंसने लगी। चलो तुम रहने दो, तुम यहाँ ही बैठो, मैं खुद जाती हूँ। फिर वो अपने घुटनों पर हाथ रखकर बामुश्किल उठी और बाहर सहन की तरफ गई। उनके किचन से निकलते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा का झोंका मेरे करीब से गुजरा हो। मैं चौंक गई। ये आज दिन में कई बार मैं महसूस कर चुकी थी। मेरा दिल खौफ से भर चुका था।
अचानक अब्बू की आवाज़ सुनकर मेरे दिल का बोझ कम हुआ। अरे भाई, आज मेरी बेटी दरवाज़ा खोलने क्यों नहीं आई? कहाँ है तारा? मैं एकदम किचन से बाहर निकली तो उन्होंने मुझे देखते ही अपने सीने से लगा लिया। क्या बात है तारा, तुम दरवाज़ा खोलने नहीं आई? तो मैं उनके सीने से लगकर रो दी तो वो परेशान हो गए। तारा, क्या बात है, क्यों रो रही हो बेटा? कुछ नहीं अब्बू, ऐसे ही दिल भर आया। अरे भाई, दिल क्यों भर आया तुम्हारा? आज तो खुशी का दिन है, तुम्हारा एडमिशन हो गया है कॉलेज में। ये खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरा कॉलेज में एडमिशन लेने का बहुत ही अरमान था, जो अल्लाह ने पूरा कर डाला। उन्हीं दिनों मेरे कज़न, जो दूर के रिश्तेदारों में से थे, हमारे घर आए। यहाँ उनके कुछ इंटरव्यू और टेस्ट थे, जिनकी वजह से वो हमारे घर रुक गए। वो मुझे बहुत ही हंसमुख और अच्छे नेचर के लगे। बात करते हुए उनका लहजा इंतहाई धीमा सा होता। वो जब मुझे मेरे नाम से पुकारते तो मुझे बेहद अच्छा लगता। एक दिन मेरे कज़न ताबिश गर्मी से बेहाल इंटरव्यू देकर जब घर पहुंचे तो अम्मी अब्बू घर नहीं थे। मैंने उस दिन छुट्टी की थी, क्योंकि अम्मी की तबीयत अच्छी न थी और अब्बू उन्हें पिम्स अस्पताल ले गए थे। मैंने फौरन जामशीरी जग भरकर बनाया और गिलास और जग लेकर उनके कमरे में दे आई। उन्होंने मुझसे अम्मी अब्बू का पूछा तो मैंने कहा कि वो घर पर नहीं है। फिर मैं किचन में आ गई और सोचा कि उनके लिए क्या बनाऊं। अपने लिए जो मैं तड़के वाले आलू चावल बना रही थी, खुदा जाने ये पसंद करें या नहीं, लेकिन दोबारा उनके कमरे में जाकर पूछने की हिम्मत ना हुई। ना ही वो बाहर आए तो मुझे इत्मीनान सा रहा। मैंने फटाफट चटपटे चावल बनाने के साथ कद्दू का रायता बनाया, जो बेहद मज़ेदार बना। फ्रिज से शामी कबाब निकाल कर तले और साथ में घर की बनी हुई सब्जियों का मिक्स अचार ट्रे में रखकर सलीके से खाना लेकर उन्हें दिया तो वो हैरान से रह गए। अरे तारा, इसकी क्या ज़रूरत थी? वो धीमे से बोले। फिर उन्होंने ट्रे मेरे हाथ से ले ली और खाने लगे। मैं पानी लेकर जब दोबारा उनके कमरे में गई तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, ये चावल तुमने बनाए हैं? तो मैंने परेशान नज़रों से उनकी तरफ देखा। क्यों, क्या अच्छे नहीं बने? तो वो हंस दिए। अरे भाई, बहुत ही मज़ेदार बनाए हैं। मैंने इस तरह के चावल इससे पहले कभी नहीं खाए। तुम्हारे हाथ में तो बहुत ही जायका है। पहली बार अम्मी अब्बू के अलावा किसी ने मेरी तारीफ की थी। ये सुनकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। उन्होंने नज़र भरकर मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल जोर से धड़का। जब अम्मी अब्बू घर आए तो उन्होंने मेरे खाने की इतनी तारीफें की कि मैं शर्मा सी गई। वो जितने दिन हमारे घर में रहे, मेरे साथ होने वाले अनहोने वाकयात रुक गए। इस बात ने मुझे ताबिश की तरफ सोचने पर मजबूर कर दिया। एक मजबूत मर्द का औरत को मिल जाना भी किसी नेमत से कम नहीं होता। मैं शायद दिल ही दिल में उन्हें पसंद करने लगी थी। मैंने पहली बार जाए नमाज पर बैठकर अपने लिए ताबिश को मांगा कि अचानक मेरे इर्द गिर्द तेज हवा चलने लगी। मैं उस वक्त सहन में नमाज पढ़ रही थी। मेरी जाए नमाज के कोने मुड़ से गए। उस दौरान मुझे अपने कानों में सरगोशी सुनाई दी। तारा, अपने लिए वो मत मांगो जो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। ये सरगोशी बहुत वाज़ेह थी। मेरा दिल दहलने लगा। कुछ दिन से ये सिलसिले रुके हुए थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं। मुझे रोना आने लगा। मैं ये बात अम्मी से भी नहीं कर सकती थी कि वो ऐसी बातें सुनने के बाद वो बेहद परेशान हो जाती थी। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? डरते डरते मैंने पूछा तो मुझे अपने कानों के पास किसी की बहुत गहरी गहरी सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरा नाम नौरेल है और मैं जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने घबरा कर कहा तो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। लेकिन मुझे इतना पता था कि वो मेरे इर्द गिर्द ही है, क्योंकि उसके बदन की भीनी भीनी खुशबू मुझे बाकायदा महसूस हो रही थी। अगला दिन जुमा का था। मैंने अपना सफ़ेद कुर्ता पजामा निकाला और बड़ी सी सफ़ेद चादर में फैसल मस्जिद जाने के लिए घर से निकली। मेरे साथ अम्मी नहीं गई, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैं नमाज पढ़कर जो ही अपनी मखसूस जगह आकर बैठी तो मुझे फिर से वही आदमी दिखाई दिया तो मैं घबरा कर उठ खड़ी हो गई। जब से उस पर निगाह पड़ी थी तब से ही मेरे साथ अनहोने वाकयात होने शुरू हो गए थे। आज तो मैं उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। मैंने फौरन नजरें झुका ली और तस्बीह पढ़ने लगी कि अचानक मुझे अपने करीब किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। तो मैंने सर उठाकर देखा तो मेरे सामने वही आदमी खड़ा था और उसकी सब्ज आंखों में मेरे लिए बेपनाह गिले शिकवे थे। आपने कहा कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो? क्या मैं आपको ऐसा लगता हूं कि जो बिला वजह किसी के पीछे पड़ जाए? क्या मैंने कभी आपको तंग किया? मेरी आंखों में हैरतें उमड़ आईं। तो क्या ये नौरेल है? नौरेल जिन? ये ख्याल आते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा तो वो कुछ फासले से मेरे करीब ही बैठ गया। मैंने दाएं बाएं देखा कि किसी को आवाज़ दूं, लेकिन पूरी मस्जिद के अहाते में मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था।
مسجد تقریب خالی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد ایک دم ہو گئی ہو؟ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تو وہ مسکرا دیا، تو گویا یہ اس کی کارستانی ہے، ورنہ جمعہ والے دن تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے مسجد میں۔ میں مسلسل خوفزدہ نظروں سے اب اسے دیکھنے لگی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھے کہنے لگا، میں اتنا بدصورت تو نہیں ہوں کہ مجھے دیکھ کر آپ مسلسل خوفزدہ ہیں۔ میں بس آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آیا ہوں کیونکہ مجھے آپ سے بات کر کے اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ میں بھی مسلمان ہوں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تو میں نے اس کو کہا کہ آپ میری زندگی سے بہت دور چلے جائیں تو اچھا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ میں آپ کی زندگی سے نکل جاؤں، لیکن بہرحال جب بھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہوگی تو مجھے آواز ضرور دے دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گیا اور ایک دم سے مجھے لوگوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مسجد میں ویسا ہی لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں فوراً وہاں سے اٹھی اور گھر چلی آئی۔ خوف سے میری حالت غیر ہو رہی تھی۔ مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں ایک جن سے بنفس نفیس ملی ہوں، اور اگر یہ بات کسی کو بتاتی ہوں تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بلکہ سب مجھے پاگل تصور کریں گے۔ لہٰذا میں نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ تابش کے گھر والے میرا رشتہ لینے کے لیے آئے، تو یہ جان کر میں خوشی سے جھوم گئی، لیکن امی ابو راضی نہ تھے۔ تو میں نے چپکے سے امی کو اپنی پسند کے بارے میں بتایا تو امی اور ابو نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ تابش مستقل مزاج لڑکا نہیں ہے، نہ ہی ڈھنگ سے کوئی نوکری کرتا ہے، تم گاؤں میں کیسے رہو گی؟ لیکن میں نے ضد میں آ کر کھانا پینا ترک کر دیا تو امی ابو نے میری ضد کے آگے ہار مان لی۔ بہت ہی سادگی سے میری شادی ہو گئی۔ شادی کے 4 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، لیکن تابش نے مجھ پر کوئی پیسہ نہیں لگایا، بلکہ میرے آپریشن کا سارا خرچہ میرے ابو نے دیا۔ میں نے ان 4 سالوں میں بہت کچھ سہ لیا تھا، لیکن کبھی اپنے والدین کو اپنی تکلیفوں کے بارے میں پتہ نہ چلنے دیا۔ اس آپریشن نے میرے والدین کے سامنے میری ساری بدترین ازواجی زندگی کی خلئی کھول کر رکھ دی۔ میری ساس اور نندوں نے تابش کو پٹی پڑھائی کہ اب تو اس نے بیٹا پیدا کر دیا ہے، یہ تمہیں نیچا دکھاتی رہے گی اور ہماری بھی عزت نہیں کرے گی۔ تابش نے یہ بات گرہ کے ساتھ باندھ لی، اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ اکھڑے اکھڑے رہنے لگے، نہ بچے کو اٹھاتے نہ ہی اس کی کوئی ضروریات پوری کرتے۔ ابو کب تک میرے بچے کے دودھ پیمپر کے لیے پیسے دیتے رہیں گے؟ مجھے بھی ان سے پیسے مانگ مانگ کر اب شرم آنے لگی تھی۔ اس سے پہلے میں نے کبھی تابش سے پیسے نہیں مانگے، لیکن بچے کی ضروریات کی وجہ سے میں جب ان سے پیسے مانگتی تو وہ گالیاں دینا شروع کر دیتے، اور اب تو مارنے بھی لگے تھے۔ ایک دن ہمارا بیٹا نبیل بیمار ہوا تو میں نے تابش کو کہا کہ وہ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلیں، تو وہ موبائل پر PUBG گیم کھیلتے ہوئے لاپرواہی سے بولے، یہ چھوٹی چھوٹی بیماریوں پر مجھ سے ڈاکٹروں کے پاس نہیں پھرا جاتا، گھر میں کوئی دوائی پڑی ہو پلا دو۔ اب 6 ماہ کے بچے کو خود ہی دوائی دینے کا رسک میں کیسے لیتی؟ میں رونے لگی، اور پہلی بار میں نے بچے کی خاطر اپنی زبان کھولی تو اس نے مجھے بہت مارا اور پھر گھر سے باہر نکال دیا، اور مجھے کہنے لگا کہ جاؤ کماؤ اور اس کی دوائیاں خود پوری کرو۔ میں وہاں سے بچے کو لے کر امی کے گھر آ گئی۔ امی میری شکل دیکھتے ہی سب سمجھ گئیں، پھر مجھے لے کر فوراً پیمز ہسپتال گئیں، جہاں پر میرے بچے کو فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا کیونکہ اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے بہت برا بھلا کہا کہ اب اس معصوم کو لے کر آئی ہو جب اس کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے، کیسے لاپرواہ والدین ہیں آپ لوگ۔ ڈاکٹر تو سخت سنا کر چلا گیا، لیکن میں نے ہاسپٹل میں ہی ایک بھائی سے فون لے کر اپنے خامند کو کال کی اور بتایا کہ نبیل کی طبیعت بہت خراب ہے، فوراً ہاسپٹل پہنچو، لیکن وہ نہیں آیا۔ نبیل کی جب حالت بہتر ہوئی تو ہم ڈسچارج ہو کر گھر گئے، لیکن تابش اسے دیکھنے کے لیے پھر بھی نہ آیا، نہ ہی میرے سسرال سے ساس اور نندیں آئیں۔ میرے بیٹے کی یہ پہلی عید تھی، لیکن نہ تو وہ میرے بیٹے کو دیکھنے آئے نہ ہی مجھے گھر لے جانے آئے۔ ابو امی نے مفاہمت کی بہت کوشش کی، لیکن وہ مجھے کسی صورت بھی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہ تھا۔ دنیا کے ڈر کی وجہ سے میرے ماں باپ ان سے طلاق بھی نہیں مانگ رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور میں صورتحال سے بہت زیادہ پریشان تھی کہ جب تک میرے والدین زندہ ہیں تو وہ میرا خرچہ اٹھا رہے ہیں، جب خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوئے تو پھر میرا اور میرے بچے کا کیا ہوگا۔ شوگر کی وجہ سے ابو کی دونوں آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی تھی اور امی ہارٹ پیشنٹ تھی۔ مستقبل کے اندیشے میرے سامنے منہ کھول کے کھڑے تھے تو میں سجدے میں سر رکھ کر رونے لگی، یا اللہ میرا کیا ہوگا، کہ اچانک مجھے ایک سرگوشی سی سنائی دی، کیوں آپ کوئی معذور ہیں جو اتنی فکر مند ہیں؟ میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور دائیں بائیں دیکھنے لگی
मेरे इर्द गिर्द वही मानूस सी खुशबू थी और सरगोशी में सुनाई देने वाला भारी भरकम लहजा भी मेरे लिए कोई अजनबी न था। नूरैल। मेरे होठों से उसका नाम एक सिसकी की सूरत में निकला और आंखें नमनाक सी हो गईं। वो मुझसे कुछ फासले पर आकर बैठ गया। पूरा सहन जैसे नूर से भर गया हो, लेकिन आज मुझे उससे डर नहीं लग रहा था। अल्लाह पर भरोसा करने वाले कभी मुस्तकबिल के अंदेशों से नहीं डरते। आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं, किसी अच्छी जगह जॉब तलाश करें और अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करें। आप कब तक अपने वालिदैन पर बोझ बनकर रहेंगी? बल्कि इस वक्त तो उन्हें आपकी अशद ज़रूरत है। नूरैल की बातें सुनकर मेरी आंखें चमकने लगीं। वाकई मेरी परेशानियों ने तो मुझे कभी इस तरफ सोचने पर माइल ही ना किया था। अब्बू ने दौराने जॉब डबल स्टोरी बना बनाया घर खरीद दिया था। ऊपर वाला पोर्शन उन्होंने किराए पर लगाया हुआ था और रिटायरमेंट के बाद अब वो पेंशन ले रहे थे। अगर मैं भी जॉब कर लेती हूँ तो हमारे घर के हालात और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे। ये सोचकर मेरे दिल में ये इत्मीनान सा उतरा और तशक्कुर भरी नज़रों से मैंने नूरैल की तरफ देखा और मुझे अल्लाह पर टूट कर प्यार आया कि उसने अपनी कोई भी मखलूक बेफैस नहीं बनाई। नूरैल मुझे किसी जुगनू से कम नहीं लगा जिसने अंधेरे में मुझे रोशनी का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।